Okay, so let us do with one more numerical problem which is from classical mechanics. Okay, from your Lagrangian and Hamiltonian. Your Lagrangian is given, you have to convert the Lagrangian into Hamiltonian, or either it has asked to find the set of Hamiltonian equations. Okay, so for that, as it is asked in the question that find the set of Hamiltonian equation for which is obtained from the Lagrangian. Okay, that your Lagrangian is L is equals to 1 upon 2 m x dot y dot minus 1 upon 2 m omega square x of y. That is your Lagrangian. Okay, it is in terms of your position coordinate and velocity coordinate. Okay, generalized position and generalized velocity. These are your, or it can be simply write it like that: L is equals to q comma q dot and t. That is your generalized position and generalized velocity as well as time. Okay, so you have to simply write this in terms of your Hamiltonian. It is written as q, p and t. P is your generalized momentum. Okay, so you have to change this generalized velocity in terms of your generalized momentum. Okay, so here you have some particular set of equation to convert these generalized velocity in terms of your generalized momentum. Okay, so as this is your Lagrangian, that is your 1 upon 2 m x dot y dot minus 1 upon 2 m omega square x of y. Okay, your first part representing your kinetic energy and second part is representing your potential energy. Okay, so in that, as your Lagrangian is your T plus V. T is your kinetic energy and V is your potential energy. Okay, so your Hamiltonian is, that is, these are its coordinates. As you write, as you write, okay, as there you have x dot and y dot there. Okay, so you have to convert these x dot and y dot for that generalized momentum, for its x component as well as your y component. Okay, as in that way it is likely to say for that momentum, and it is for the position. Okay, so for that you just simply need to follow these particular equations, as your p of x is equals to curly L by curly of x dot. Okay, you just simply have to differentiate this Lagrangian with respect to x dot. Okay, or we can say with respect to generalized velocity. Okay, here you have its x component. Here is your Lagrangian, that is curly by curly of its differential will be curly by curly x dot of 1 upon 2 m x dot y dot minus 1 upon 2 m omega square x of y. Okay, so now when you are differentiate this with respect to x, so here you have x dot, so its differential will be here 1 upon 2 m y dot. Okay, so here you, in the second term, you do not have any x dot, so its differential will be constant there. So it will be p of x is equals to 1 upon 2 m y dot. Okay, as you need to replace this y dot, that y dot is included there, and you have to convert it in terms of generalized momentum. This is your generalized momentum p of x, so you simply calculating the value of y dot from this equation. Y dot is your, just take this to the numerator and just take this m to the denominator, so it will be 2p of x upon m. Okay, so your y dot is equals to 2p of x upon m. On the same way, for differentiate this Lagrangian with respect to y dot, as you have differentiated this with respect to x dot, you simply have to replace this or differentiate this with respect to y dot. So that will be your 1 curly by curly of y dot of 1 upon 2 m x dot y dot minus 1 upon 2 m omega square x of y. This was your Lagrangian. Just simply differentiating this, your second terms do not include any of the y dot, so simply your first term will get differentiated, so it will be your 1 upon 2 m x dot on the same way. Okay, so here you have
your x dot, your p of y. P of y, we are calculating this thing. So p of y is equals to 1 upon 2 m x dot. इसकी differentiation of the first term. Okay, so it is there, so it will be your 1 upon 2 m x dot. Hope you know the differentiation. Okay, so that will be your 1 upon 2 m x dot. So you can, as you have calculated this y dot here, this calculated this y dot there, so on the same way you have to calculate this x dot here. So your x dot will be 2, this 2 will go to the numerators and this m will go to the denominator. So it will be your 2p of y upon m. Okay, so we have, I hope we have done with these things, that x dot and y dot, as you need p of y x and p of y. Okay, x or y is included there. So it will be, it depends whatever is asked in the question. If it is in terms, if that Hamiltonian, or if in that MCQs, that Hamiltonian is written in terms of xy, px and p of y. Okay, then you just need to replace these things. Either you can replace even those two. Okay, so that will be your, that Hamiltonian, with your Hamiltonian is kinetic energy plus potential energy. Okay, so here you have your Hamiltonian 1 upon 2 mx dot y dot minus 1 upon 2 m omega square x and y. So when you have converted them, then simply just replace them or substitute these values of x dot from this equation, that is your equation number 4, and y dot from this equation. Okay, in your Lagrangian, so h is your 1 upon 2 m x dot y dot minus 1 upon 2 m omega square x and y. So here you have 1 upon 2 m, your x dot is your 2p of x upon m and 2p of y upon m. 2 is get cancelled with 2, m is get cancelled with m, so you have 2 times px py upon m minus 1 upon 2 m omega square x and y. Okay, so here is your Hamiltonian, okay, which is in the form of generalized momentum along x-axis and generalized momentum along y-axis, that is your px and py. Okay, you can even simply replace these x and y. So for that you just simply need to do this thing, px dot is equals to curly h by curly of x. Okay, so for that you just simply need to differentiate this Hamiltonian, that resulted Hamiltonian, with respect to x and with respect to y. Okay, so here is your Hamiltonian, this is your Hamiltonian, this is your Hamiltonian. We are differentiating it with respect to x, so it is p of px dot is equals to minus this, your first term, do not include any of x and y. Okay, so it will be your x, and here you have your x, so it will be minus of 1 upon 2 m omega square y. Okay, so your px dot is equals to minus 1 upon 2 m omega square y. Okay, so for py dot, just do the differential of Hamiltonian with respect to your y, that is with respect to your generalized position coordinates on the same way as you have done in this part. So it will be simply like this term, differential 0, no y included, y is included there, so it will be your minus 1 upon 2 m omega square x. Okay, so it will be py dot is equals to minus 1 upon 2 m omega square x. Okay, so यहाँ से आप y, you can simply calculate the value of y and x from these two equations, from equation 5 and from equation 6, and simply can replace there in this Hamiltonian. ओके, डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है. जैसे ये आपके पास लेग्रेंजियन यहाँ पे दिया गया है जो दो टर्म्स इंक्लूड करता है, जैसे हम लेग्रेंजियन बोलते हैं ना, एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी. ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म क्या डिनोट करती है, जैसे एम वी स्क्वायर होता है ना, ये वेलोसिटी है, ठीक है. सो दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी. जब बोलते हैं पार्टिकल्स एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सो दीज आर योर वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डॉट एंड वाई डॉट. ओके,
और ये वाली टर्म आपकी रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी को। जब पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि जब हम लैग्रेंजियन लिखते हैं वो लिखते हैं जनरलाइज्ड पोजीशन की, जनरलाइज पोजीशन डिनोट करती है आपकी एक्स एंड वाई है, वाई को, और एक्स डॉट और वाई डॉट डिनोट करती है आपकी जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, जब हम इसको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखते हैं, हैमिल्टोनियन की फॉर्म में आता है ये आपका पोजीशन की फॉर्म में, जिसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में क्यू से डिनोट करते हैं पोजीशन को। ठीक है, और जो इसका मोमेंटम है उसको पी से डिनोट करते हैं, और टी इसका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो पी को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड, और पी यहाँ पे क्यू को, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई एंड जेड भी लिख सकते हैं, और पी को लिखते हैं मोमेंटम, इसको हम पी एक्स पी वाई एंड पी जेड भी लिख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन की, लैग्रेंजियन को हम जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज मोमेंटम, और जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम के फॉर्म में लिखते हैं, और हैमिल्टोनियन को लिखते हैं हम जनरलाइज पोजीशन एंड जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम की फॉर्म में। ठीक है, तो इससे क्या, जब हम लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन के जाएंगे तो उस वक्त हम जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जनरलाइज वेलोसिटी जिनको बोलते हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जनरलाइज मोमेंटम की टर्म्स में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एल इज योर 1/2, ये आपका जैसे लैग्रेंजियन दिया गया है, एल इज इक्वल्स टू 1/2 एम एक्स डॉट वाई डॉट माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ वाई। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे को लैग्रेंजियन एनालाइज करना पड़ता है। इफ़ इट इज अगर यहाँ पे सिंपली एक्स डॉट स्क्वायर होता तो हमारे को एक ही मोमेंटम का कोऑर्डिनेट्स या फिर कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक्स डॉट एंड वाई डॉट। ओके, सो हमारे को पी एक्स और पी वाई चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई है। ठीक है, इसको भी हम पी एक्स डॉट या फिर पी वाई डॉट के लिए चेंज कर सकते हैं। ओके, सो पी एक्स इज योर, पी ऑफ एक्स इज योर करली एल बाई करली ऑफ एक्स डॉट। ये आपके पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशंस रहते हैं, जैसे कि पी एक्स डॉट इज योर करली एल बाई करली ऑफ एक्स। ये आपका मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम देता है। ठीक है, व्हेन यू विल डिफ्रेंशिएट, जब आप इस लैग्रेंजियन को डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ओके, ये आपका जनरलाइज, क्योंकि एक्स डॉट यही होता है ना, डी एक्स बाई डी टी योर वेलोसिटी। सो अब डिफरेंशियल को इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये क्या चीज़ है, करली एल बाई करली ऑफ एक्स डॉट। अब ये आपका लैग्रेंजियन यहाँ पे दिया गया है, लैग्रेंजियन को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। अब आपके पास इस लैग्रेंजियन में फर्स्ट टर्म में एक्स डॉट यहाँ पे है, तो ये डिफ्रेंशिएट होके क्या रह जाएगा, इसकी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, सो दैट विल बी योर 1/2 एम वाई डॉट। यहाँ पे कोई एक्स डॉट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सो पी एक्स इज योर 1/2 एम वाई डॉट। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स, पहले इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एक्स डॉट लिखा हुआ है, एक्स डॉट को इसके रिस्पेक्ट में, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपका क्या है, एक्स डॉट यहाँ पे। ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/2 एम वाई डॉट, और इसकी डिफ्रेंशिएशन 0। सो योर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एम वाई डॉट। अब हमारे को, क्योंकि यहाँ पे आप लैग्रेंजियन देख सकते हैं, हमारे पास एक्स डॉट और वाई डॉट है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एम वाई डॉट। हमारे को यहाँ से वैल्यू चाहिए वाई डॉट की, वाई डॉट को, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस करना है विद जनरलाइज मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, सो दैट इज योर वाई डॉट इज योर 2p ऑफ एक्स अपॉन एम। ओके, सो इसी तरह से अगर हमारे को इसका जनरलाइज मोमेंटम का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में लेना है, ठीक है, सो दैट विल बी पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू करली एल बाय करली ऑफ वाई डॉट। ये कुछ सेट ऑफ इक्वेशन है जो आपको याद रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसी लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे वाई डैश है, यहाँ पे एक्स डैश है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, सो इट विल बी 1/2 एम एक्स डॉट। यहाँ पे वाई डॉट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। सो इट विल बी पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/2 एम एक्स डॉट।
ओके, सो यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे वाई इसको पी एक्स की फॉर्म में लिखा, तो इसी तरह से हम क्या निकालते हैं यहाँ से एक्स डॉट विच विल बी 2p ऑफ y अपॉन m। ओके, कुछ इस तरह से। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पे रिप्लेस कर, जो आपकी इक्वेशन निकल के आती हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, सब्स्टिट्यूट दीज इक्वेशन इन योर लैग्रेंजियन। इस लैग्रेंजियन में क्या कर देना है, इन इक्वेशंस को फिल कर देना है यहाँ पर एक्स डॉट और वाई डॉट की। सो दैट विल बी अ सिंपल लाइक हैमिल्टोनियन विल बी योर हैमिल्टोनियन विल बी एच विल बी 1/2, ये आपका लैग्रेंजियन था ना, ठीक है। सो एल इज योर 1/2 एम एक्स डॉट वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाता है, एच इज योर 1/2 एम एक्स डॉट की जगह क्या आ जाएगा 2p ऑफ वाई अपॉन एम, तो यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से y डॉट की जगह क्या आ जाएगा 2p ऑफ वाई अपॉन एम, ठीक है, माइनस 1 अपॉन और सेकेंड टर्म एज इट इज। तो अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आपके पास रह जाएगा 2p ऑफ x p ऑफ y अपॉन m, ठीक है, माइनस दैट विल बी 2p ऑफ x p ऑफ y अपॉन m माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका हैमिल्टोनियन आ जाता है एंड में। तो अब जैसे अब इसी तरह से हैमिल्टोनियन से पी एक्स डॉट और पी वाई डॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस में किस फॉर्म में लिखी है हैमिल्टोनियन इक्वेशन। अगर वो पी एक्स और पी वाई की फॉर्म में लिखी है तो सिंपली ये दो सेट चेंज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू, सिंपली डिफ्रेंशिएट दीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर गेटिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है, फॉर वाई डॉट फॉर पी वाई, और इसी तरह से पी एक्स डॉट और पी वाई डॉट कर लिया भाई। अब इसको हैमिल्टोनियन को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। ये आपका हैमिल्टोनियन आ गया, ठीक है। या फिर इवन इस चीज़ को भी आप रिप्लेस, इस चीज़ को भी अगर आप विद, अगर ये पी एक्स डॉट को अगर आप यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है, माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ वाई। तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी यहाँ पे, ये क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो एक्स एंड वाई इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस पर। सो दैट विल बी आर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ओके, व्हेन यू आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो सेम चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, माइनस पी ऑफ एक्स डॉट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई ऑन द सेम वे फॉर पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई डॉट के लिए भी कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे, और सिंपली आप जो ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाती है, इनको सिंपली यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़, एक्स एंड वाई की वैल्यू और एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यूज़ कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे लैग्रेंजियन में, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द आंसर और ऑप्शन इज गिवन इन योर ऑप्शन।